नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों और बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानी डॉक्टरों से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। कहा, हर साल कम अज़ कम एक हफ़्ता तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों की खिदमत के लिए वक्फ़ करें। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने 4 जुलाई को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इजलास के सिलसिले में एलवी स्टेडियम का किया मुआयना। बिहार इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी पर इलेक्शन कमीशन को बैरिस्टर अवैसी का खत। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली और बीजेपी लीडर माधवी लता ने बीबी के अलावे पर दी हाज़िरी और अलम को धट्टी की पेश। 2024 में प्रजा भवन में बंका चरला प्रोजेक्ट का खुफिया मुआहिदा हुआ। हरीश राव का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम। तेलंगाना के पाशा मैलारम में वाक़े फार्मा प्लांट में खौफनाक धमाके के नतीजे में कंपनी के मुताबिक 40 अफराद हलाक और 33 हुए ज़ख्मी। एमआरओ और अटेंडर को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ने किया गिरफ्तार। जिले रंगारेड्डी में कार्रवाई। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के कॉरपोरेट अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानी डॉक्टरों से अपील की है कि वो हर साल कम अज़ कम एक हफ़्ता तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों की खिदमत के लिए वक्फ़ करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक हफ़्ते की खिदमत भी किसी मरीज़ की ज़िंदगी बदल सकती है। रेवंत रेड्डी आज हैदराबाद के बंजारा हिल्स में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए AIG अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने रियासत में 5 नए सरकारी अस्पतालों की तामीर बशमुल उस्मानिया, टिम्स मराकिज़, निम्स तौसी और वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तफसीलात बताई, जो दिसंबर 2025 तक मुकम्मिल होंगे। साथ ही जापान जैसे ममालिक में बढ़ती उम्र रसीदा आबादी की देखभाल के लिए नौजवानों को तिबी निगहदाश्त और जापानी ज़बान की तरबियत देने का भी ऐलान किया, जो तेलंगाना राइजिंग 2047 के तहत रियासत को $1 खरब की मईशत बनाने के विज़न का हिस्सा है। పేదలకు ఉచితంగా వీలైనంత మేరకు వైద్యాన్ని అందించాలి, పేదలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే ఒక ప్రాధాన్యత క్రమాలు పెట్టుకొని మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇందులో ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా మీ సమయాన్ని మీరు కేటాయించుకుంటూనే ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలకు కూడా మీ వంతు సహకారం ఉండాలి. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి రాష్ట్రంలో చదువుకున్న డాక్టర్లందరికీ నేను ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. సంవత్సరంలో ఒక్క నెలైనా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో పనిచేయండి. 11 నెలలు మీరు మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో మీకు నచ్చిన జీతం తీసుకొని మీకు నచ్చిన లైఫ్ను మీరు లీడ్ చేయండి. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద సంవత్సరంలో ఒక్క నెల ఎక్కడైనా మీకు ఏదో ఒక హాస్పిటల్లో ఒక నెల రోజులు డాక్టర్లు సమయం కేటాయించి పేదలకు వైద్యం చేస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ దట్ ప్లెజర్. మనం ఒక వృత్తిలో మేము పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా రకాల పనులు చేస్తుంటాం, కానీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం, పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కొన్ని సెలెక్టెడ్గా కొన్ని పనులను ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించి పని చేస్తూ ఉంటాం ప్రజాప్రతినిధులుగా. అదేవిధంగా నేను డాక్టర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, సంవత్సరంలో ఒక నెల మీ ఇష్టం ఏ హాస్పిటల్లో ఏ నెలలో పనిచేస్తారో మీరు గవర్నమెంట్కి ఇండికేట్ చేయండి. నేను అధికారులకు చెప్పిన, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇన్ తెలంగాణ, అమెరికాలో చాలామంది డాక్టర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చూడడానికో ఫ్యామిలీని కలవడానికో స్పెషలిస్టులు ఇండియాకు వస్తున్నారు. దే వాంటెడ్ టు సర్వ్ సంథింగ్, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ టు గో, హౌ టు గో, వేర్ టు సర్వ్, వెన్ టు సర్వ్. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ వై ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ మై పీపుల్ to create a platform, ask them to put some information. వాళ్ళు ఎప్పుడు మన దగ్గరకు వస్తుండ్రో, ఏ సమయం ఇవ్వగలుగుతారో, కనీసం ఒక 1 వీక్ ఇచ్చిందంటే ఆ 1 వీక్లో నిమ్స్లోనో ఉస్మానియాలోనో ఎక్కడైనా స్పెషలిస్టులు ఆ పేషెంట్లను అడ్రస్ చేస్తే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఫిజికల్గా ఒకసారి చూస్తే తర్వాత ఆన్లైన్ అయినా వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి సాంకేతిక రంగంలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీ GCCలో కానీ ఐటీ కంపెనీలో కానీ ఈరోజు ప్రపంచంలో హైదరాబాదు వన్ ఆఫ్ ద డెస్టినేషన్. సో మనం ఈ సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకొని హెల్త్ సైడ్ కూడా మనం పనిచేయాలి. రీసెంట్గా నేను ఏవియేషన్ మినిస్టర్
तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने 4 जुलाई को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इजलास के लिए एलबी स्टेडियम का मुआयना किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के कांग्रेस कायदीन से अपील की है कि वो इस इजलास को शानदार कामयाबी दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करें। ये पहला मौका होगा जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे देही सतह की कांग्रेस सुदूर से बराह रास्त बातचीत करेंगे और इस मुहिम की शुरुआत तेलंगाना से की जा रही है। On 4th July, All India Congress Committee President is going to address all the presidents of the respective villages. This is the first of its kind, addressing a AICC president to all the village level Congress presidents. It is going to be it is a biggest meeting, and this is the first of its kind in the country, and we are organizing in a big way. I am requesting and giving a call to all the village presidents, mandal presidents, block level presidents and district presidents to attend without fail by 3 p.m. on 4th of this month. So what is the prime? See, the prime idea is to send the Congress party, spread the Congress party ideology, and the AICC president wants to speak directly to all the village level presidents. So this is what. सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बिहार इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी पर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि ये अमल वोटर लिस्ट से नाम हटाने का सबब बन सकता है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस अहम मामले पर सभी जमातों की मीटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे लोगों के वोट और रोज़गार दोनों पर असर पड़ सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ECI ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन हो तो सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फ़र्ज़ करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समरी इंटेंसिव रिवीजन में कि यहाँ पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना तो मेरे को, फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और तीसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था,
वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद अहमद अली ने बीबी के अलावे पर हाज़िरी दी और अलम मुबारक को डट्टी पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों को हमेशा अल्लाह की नुसरत हासिल होती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन रूहानी रिवायत का एहतराम किया जाए और इन्हें सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाए और अच्छे इंतज़ामात किए जाएँ। याकूतपुरा में आके पी के आलम को धरती देने के लिए बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो इल्म मुबारक है उसे आज धरती दी गई है और यहाँ पर गिरा कर दुआ की गई है। ख़ास तौर से हमारे इनायत अली बाकरी साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे बदर भाई साहब हैं, हमारे लायक भाई साहब हैं, लतीफ़ शरफन साहब हैं, एजाज साहब है, अफसर भाई साहब है, फुरखान साहब है और तमाम हमारे कायदीन जो है आज यहाँ का पी के आलम को धरती दी गई है। ये हमारा अकीदा है। यहाँ पर जो भी आकर जो मन्नत करते हैं, इससे पहले हमारे KCR साहब भी आए थे हमारे बाकरी भाई की क़यादत में, यहाँ का दुआ किए थे हमारे तेलंगाना के लिए और यहाँ के पी के आलम को धरती दी गई थी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो इल्म मुबारक है उसे हम लोग आकर धरती देते हैं और दुआ करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि जो वाक़या गुज़रा है मुहर्रम के अंदर, इसके अंदर ही हमें साबित करता है कि जो लोग सब्र के साथ रहते हैं अल्लाह ताला उन्हीं का साथ देता है। कभी भी जालिमों की कभी मदद नहीं होती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो ने शहादत पाई है, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा एहतराम का महीना है ये और उनकी शहादत को हम आज याद करते हैं। और हक़ और बातिल की जंग थी, हक़ के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, कभी बातिल की तरक्की का मौका नहीं दिया। तो आज यहाँ पर हम लोग आए ख़ास तौर से हमारी स्टेट की तरक्की के लिए, हम लोगों में गंगा जमुना तहजीब के फ़रोग़ के लिए इस अलम को धरती देकर हमने दुआ की है। और ये बात हम यकीन से कहते हैं, BRS के दौरे हुकूमत में जो बी के आलम के इंतज़ाम किए जाते थे, यहाँ से हाथी का आलम निकलता था, हाथी वक्त से पहले आता था और बहुत अच्छे इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से किए जाते थे। इस मरतबा एक साथ बोनार और बी के आलम करीब एक दिन के आगे पीछे एहतमाम किया जा रहा है और बहुत लापरवाही हुकूमत की तरफ से की जा रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ के जो इंतज़ाम है अभी तक हाथी नहीं आया। हमारे MLC साहब और यहाँ के मुतवल्ली साहब गए हुए हाथी के लिए और अभी 3 दिन बाकी रह गए। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये जो हमारी ये ईद नहीं है, हमें गम है आज की तारीख़ और इस 10 मुहर्रम को हम गम मनाते हैं। हमारे गम में हुकूमत भी साथ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बातिल और हक़ की जंग है, हमेशा हक़ की फतह के लिए हमारे प्यारे नवासे अपनी जान भी कुर्बान कर चुके हैं। तो आज हम उनकी गम की उनकी जो कुर्बानी पर हम गम का इज़हार करते हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा आज नहीं, तेलंगाना बनने से पहले भी हमारे KCR साहब, कविता मैडम साहबा कई बार यहाँ का हाज़िरी दी है और यहाँ पर दुआएं की हैं और वो दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। पर आज की जो हुकूमत है बड़ी लापरवाही से काम कर रही है, इंतज़ामात बहुत नाक़िस है। हम चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करते हैं कि आज का नहीं है, ये 100 साल से यहाँ की रिवायत है, 100 साल से हाथी बाज़ाब्ता। हम यही हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं, ज़ू में कंजर्वेटर को बोलकर यहाँ का हाथी का परमानेंट इंतज़ाम किया जाए ताकि हर साल ये तकलीफ ना हो। हमारा हाथी जो है बी का आलम भी ले जाता है। तेलंगाना अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने निज़ामाबाद में अक़लियतों की फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। उन्होंने कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और दीगर अहदेदारों से मुलाकात के दौरान अक़लियती बिरादरी के हालात का जायज़ा लिया और बेदारी के लिए वसी तशहीरी मुहिम चलाने की हिदायत दी। उन्होंने अक़लियती ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम, रोज़गार और दीगर सहूलियात की फ़राहमी पर ज़ोर दिया। तारिक अंसारी ने मुस्लिम क़ब्रस्तानों के लिए ज़मीन की फ़राहमी, इंदिरम्मा घरों की मंजूरी, पेशा वराना तरबियत और तालीमी इदारों में मियारी तालीम की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली।
उन्होंने कहा कि अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक से बचाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। कलेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत की फलाही स्कीमों पर मौसर अमल किया जाएगा। वज़ारत चेयरमैन ने अक़लियती बरादरी से मसाइल पर नुमाइंदगी भी हासिल की। साबिक़ वज़ीर व BRS के MLA टी हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू के साथ मिलकर तेलंगाना के पानी के हक़ को ख़त्म करने का काम किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुलाई 2024 में प्रजा भवन में बंकर चल्ला प्रोजेक्ट का खुफिया माहिदा हुआ। हरीश राव ने कहा, सितंबर में उत्तम कुमार रेड्डी अपनी बीवी के साथ विजयवाड़ा जाकर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग प्रजा भवन में नहीं बल्कि अमरावती में हुई लग रही थी। उन्होंने कहा कि आंध्रा सिर्फ गोदावरी का नहीं बल्कि कृष्णा का पानी भी लेना चाहता है। జూలై 6, 2024 నాడు ప్రజాభవన్లో రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడుల మీటింగ్ జరిగింది. ఆ తర్వాతనే ప్రాజెక్టు పనులు స్టార్ట్ అయినాయి. రేవంత్ రెడ్డి గారు అదే రోజు ప్రజాభవన్ వేదికగా తెలంగాణ నీటి హక్కులకు మరణ శాసనం రాసిండు రేవంత్ రెడ్డి. ఆ తర్వాత ఏమైంది, జూలై 6, 2024న రేవంత్ చంద్రబాబు కలిసిండ్రు. సెప్టెంబర్ 13, 2024 ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సతీ సమేతంగా బెజవాడకు పోయి బజ్జీలు తినొచ్చిండు. అక్కడ సైలెంట్ అయిపోయింది. ఇక బెజవాడ బజ్జీలు తిని బెజవాడకు పోయి చంద్రబాబు నాయుడు సతీ సమేతంగా కలిసి గోదావరి బనకచెర్లకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా పచ్చ జెండా ఊపిండు. ఆనాడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రజాభవన్ వేదికగా, బెజవాడ వేదికగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఈ ఇద్దరు కలిసి ఈ గోదావరి బనకచెర్లకు జెండా ఊపిండ్రు. జూలై 6, 2024 ఏమో రేవంత్ రెడ్డి, సెప్టెంబర్ 13, 2024 ఏమో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. కరెక్ట్గా మీరు డేట్లు చూస్తే దాని తర్వాత ఇదే క్రమంలో నవంబర్ 15, 2024 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది నిర్మలా సీతారామన్ గారికి లెటర్ రాసిండ్రు. మీరు కలవంగానే లైన్ చూడండి. ఫస్ట్ రేవంత్ కలిసిండు, సెకండ్ ఈయన పోయి రేవంత్ రెడ్డి గారు దూలంగానే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సతీ సమేతంగా వేయించిండు బెజవాడకు. ఈయన సెప్టెంబర్లో పోగానే నవంబర్ నెలలో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్మలా సీతారామన్కు గోదావరి బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పి రాశాడు. దీని తర్వాత మళ్ళీ డిసెంబర్ నెలలో 80,000 కోట్లు ఇవ్వండి మాకు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు డిసెంబర్లో నిర్మలా సీతారామన్ గారికి ఉత్తరం రాశారు. నవంబర్లోటి, డిసెంబర్లోటి. అయితే ఇంత కుట్ర జరిగినా కూడా రేవంత్ రెడ్డి మౌనంగా ఉన్నాడు. मानसून के पेश नज़र हैदराबाद में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हाइड्रा ने 4100 से ज़ायद अहलकार तैनात किए हैं। इनमें 150 मानसून इमरजेंसी टीमें, 734 नकासी आब अमला, 51 डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स टीमें और ट्रैफिक व कचरा हटाने के लिए इजाफी अमला शामिल है। ये टीमें 24 घंटे मुतहरिक रहेगी ताकि बारिश के दौरान पानी जमा होने, दरख्त गिरने या दीगर इमरजेंसी मसाइल का फौरी हल किया जा सके ताकि शहर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर ना हो। बीजेपी लीडर माधवी लता ने बीबी के अलावे डबीरपुरा पर हाजिरी दी और अलम मुबारक को ढट्टी पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजलिस पर शदीद तनकीद की और कहा कि यहाँ तरक्याती कामों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुहर्रम का 5वां दिन है। मैं कितना जानती हूँ इस्लाम के बारे में या अल्लाह ताला के बारे में, ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन इतना तो पक्का जानती हूँ मैं, हर मजहब ईमानदारी, सच्चाई और धर्मबद्ध एक जीवन को आगे लेके जाना ही सिखाता है। मोहम्मद पैगंबर साहब खुद अपनी बीवी खदीजा बीवी के मदद से ही इस्लाम को चारों ओर फैलाए, ये सब जानते हैं हम लोग। लेकिन बदनसीबी की बात तो ये है कि खुदगर्ज राजनीतिक भी उस जमाने में भी थे। पैगंबर साहब के इतने कोशिशों के बावजूद भी
हम पैगंबर साहब को अपने लिए ज्यादा दिन रख नहीं पाए, और इसके बाद उनके खुद के बेटी फातिमा, जिनके नाम में ही माँ है, उन्होंने जिस दुख को देखी है कोई भी माँ को नहीं देखना चाहिए। मजहब से अतीत है ये बात। स्त्री ही जान सकती है उस कोख का दर्द क्या है। उन्होंने अपने बच्चों को इसीलिए नहीं खोया है कि वो बच्चों को जन्म देते वक्त कुछ समस्या थी, उन्होंने इसीलिए खोया है क्योंकि उस दिन भी यही खुदगर्ज राजनीतिज्ञ थे, उसके हवस हो गए उनके सारे बच्चे। पैगंबर साहब के लिए उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है इस्लाम को आगे बढ़ाने के। 1400 साल हो गए भाइयों और बहनों, 1400 साल हो गए। जरा ऊपर करके देखिए, आज भी ये पक्का छत नहीं बनता है हर साल। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी सच्चाई है। हर साल जो मुहर्रम के लिए पैसे आते हैं, क्या एक बार पक्का छत नहीं बन सकता? ये बार बार ये जो छत बनता है उसके पैसों से क्या पसमंदे मुसलमानों के पेट नहीं भर सकते हम लोग? एक ऐसी राजनीति है, मजहब के नाम से करते हैं लोग, मजहब के नाम से करते हैं लोग, और इसी बात को बार बार लोगों के बीच में दरार लाने के लिए उछालते हैं। आज दबीरपुरा में शम्स मस्जिद है ना, मेरे से ज्यादा आप लोग वाकिफ हो ना उसके बारे में। अगल बगल में बिल्डिंगा बन रहे नहीं बन रहे, 2 फ्लोर की मांग है तो 7 फ्लोर से ऊपर जा रहा नहीं जा रहा, मस्जिद के गुंब के ऊपर से भी जा रहे नहीं जा रहे। क्या मस्जिद के वाले जो मुद्दीन है वो बार बार पूछ रहे ना कि मत करो ये कंस्ट्रक्शन, मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अजान नहीं कर पा रहे। क्या किसी ने ये कंस्ट्रक्शन? एमएलए एमआईएम का, एमपी साहब एमआईएम का। ज़िले संगारेड्डी के पाशा मलयारम में वाक़ई फार्मा प्लांट में खौफनाक धमाके के नतीजे में कंपनी के मुताबिक 40 अफराद हलाक और 33 ज़ख्मी हुए। कंपनी ने वजाहत दी है कि धमाका रेटर के फटने से नहीं हुआ। ज़ख्मियों के इलाज और अहल खाना को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है और प्लांट की सरगर्मियाँ 90 दिन के लिए बंद कर दी गई है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने फैक्ट्री इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुजरिमाना गफलत का मुकदमा दर्ज किया है। ये केस एक मुतवफ़ी मुलाजिम मोहन के बेटे की शिकायत पर दर्ज हुआ, जिन्होंने कंपनी पर पुरानी और गैर महफूज मशीनों की वार्निंग को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। रंगारेड्डी ज़िले के तल्लाकोंडापल्ली मंडल में एमआरओ बी नागराजन्ना और अटेंडर यादगिरी को तेलंगाना एसीबी के हुक्काम ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों एहलकारों ने किसान मल्लैया से ज़मीन की रजिस्ट्री इसके ख़ानदान के नाम करवाने के लिए रिश्वत तलब की थी। गिरफ्तारी के बाद किसानों ने खुशी से पटाखे जलाए और जश्न मनाया। इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। निर्मल ज़िला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने भैंसा कैंप ऑफिस में निर्मल के तमाम पुलिस स्टेशनों को जदीद टैब और कैमरे तकसीम किए। ये आलात ब्लू कोड 100 डायल रिस्पॉन्स, ट्रैफिक चालान और रात के गश्त के दौरान मुश्तबा अफराद की शनाख्त में मदद करेंगे, जिससे पुलिस का निज़ाम मज़ीद मौसर होगा। इस मौके पर एसपी ने निर्मल ज़िले के 208 होमगार्ड्स को बारिश से बचाव के लिए वाटरप्रूफ जैकेट्स, रेनकोट्स भी तकसीम किए। इस इक़दाम पर होमगार्ड्स ने शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में टाउन सीआई गोपीनाथ, मुधोल सीआई मल्लेश,
और दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी डॉक्टरों से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। कहा, हर साल कम से कम एक हफ्ता तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की खिदमत के लिए वक्फ करें। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने 4 जुलाई को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इजलास के सिलसिले में एलबी स्टेडियम का किया मुआयना। बिहार इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी पर इलेक्शन कमीशन को बैरिस्टर अवैसी का खत। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला महमूद अली और बीजेपी लीडर माधवी लता ने बीबी के अलावे पर दी हाजिरी और अलम को धट्टी की पेश। 2024 में प्रजा भवन में बंका चरला प्रोजेक्ट का खुफिया मुआहिदा हुआ। हरीश राव का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम। तेलंगाना के पाशा मैलारम में वाक़ई फार्मा प्लांट में खौफनाक धमाके के नतीजे में कंपनी के मुताबिक 40 अफराद हलाक और 33वें जख्मी। एमआरओ और अटेंडर को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ने किया गिरफ्तार। जिले रंगारेड्डी में कार्रवाई। ये थी आज दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।